Good evening, my dear students. Today we will study the English subject and the lesson number 1.4. All the words a stage. It's a poem, and first of all we will start with the warming up. तो स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्शन वार्मिंग अप दिया है. उसमें हमको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टॉक टू योर फ्रेंड अबाउट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू 7. अभी फ्रेंड से तो क्या बोलोगे आप खुद से बात करो कि क्या है जो 7 से कनेक्टेड है ना. इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, है ना. देर आर 7 कलर्स इन रेनबो, और 7 आसमान बोलते हैं, और 7 जन्म, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो वो क्या क्या लगता है आपको, वो सोचो. तो यहाँ बताना चाहते हैं कि 7 जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है. ओके, सारे नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 7 जो है उनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो कुछ तो है इसमें, इसलिए है 7. बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्टेड है द नंबर 7. फिर आगे दिया, लाइफ इज़ ऑफन कंपेयर टू मैनी थिंग्स. यस, वी कंपेयर लाइफ विद वेरियस थिंग. जैसा हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम लाइफ को बहुत सारी चीज़ों के साथ कंपेयर करते हैं. सो आपको भी जो भी लगता है मुझे व्हाट्सअप पे जरूर सेंड करो. आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू, मतलब व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस टिल नाउ. ओके, डोंट कॉपी लाइन फ्रॉम एनीवेयर. लाइफ इज लाइक आइसक्रीम और अदर थिंग्स लाइक अ पेपर वी हैव टू कलर इट और फिनिश इट. नो, whatever you have experienced till this age, till 10th standard, whatever you have experienced about life, so send me that line. For example, as per my experience, this whole life is a exam where you have to which you have to clear. And if you have desire, if you have clear it, but the most important, if you have desire, then you will get a different word, the word which you want to live, that word you will get after this life. Okay, so I think the life is a exam. You have to clear it now or afterward, but you have to clear it. So if you clear it soon, that it's good for you. So now next they have make a table over there, age group and stages. You can read that. The most important, the 7th one. Above 80 years, again childhood. Again, at the beginning you are child, at the ending you are also child, if you alive till that age, because that time the people who are in those age, they started to behave like a child. So now come to the poem. The famous poet William Shakespeare. What do you want to explain over there? We will read the introduction. This poem is taken from his play As You Like It. Here he compared the world to a stage where the drama of the human life is enacted. In the introduction he has explained that this poem is taken from his play. It was a play. The name was As You Like It. So this poem is taken from that play. And what he has explained, what is the theme of this poem, that the whole world is a stage. Stage where everyone do a drama. They have a script and a different character, or we can say players who have to play their role over there. So he has compared the whole world with a stage where different peoples have to play their role. The scripts is also finalized. They have to speak those things only. So let's begin with the poem. All the words stage. Same the first line कि पूरी दुनिया जो है, the whole world जो है वो स्टेज है, एक थिएटर है. एंड ऑल द मैन एंड वुमेन, और जितने भी यहाँ पर हैं, जो भी 2 कैटेगरी बोलते हैं, जेंट्स एंड लेडीज़, वो सब क्या हैं, सिर्फ प्लेयर्स हैं. मीन्स हु आर प्लेइंग दी रोल. ओके, तो प्लेयर हैं जो मतलब अपना रोल प्ले कर रहे हैं. ओके, किसी से ज़्यादा, मतलब जो जैसा होगा उसी हिसाब से उसको, जैसा वो रोल के लिए फिट बैठा है, गॉड ने उनको रोल दे दिए हैं, करो अपना अपना प्ले करो. इसलिए किसी से ज़्यादा तकलीफ़ लेने की, इसलिए यहाँ पर ये मेंशन करते हैं कि ज़्यादा मत किसी को क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है. किसी को वो अपना प्ले, उसको अपना एक स्क्रिप्ट दे दी गई है, वो अपना जो रोल है उसको प्ले कर रहे हो, आप अपना रोल प्ले करो. दे हैव देयर
एंड देयर एंट्रेंसेस, और ये जो भी प्लेयर्स हैं इनके खुद के एग्जिट्स भी हैं और एंट्रेंसेस भी हैं, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट बर्थ एंड डेथ, कि एंट्रेंस है मीन्स बर्थ हो गई और एग्ज़िट कर दिया मतलब डेथ हो गई। तो उसके बारे में है कि ये जो प्लेयर्स है वो आते हैं जाते हैं, है ना। दुनिया एक रंगमंच है और हम सब यहाँ पर क्या हैं, खिलाड़ी हैं। एंड द वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। तो यहाँ पर मतलब हर इंसान जो है वो अपने टाइम में जितना भी उसको टाइम मिला है उसमें वो बहुत सारे अलग अलग रोल प्ले करता है। ये नहीं कि एक ही रोल प्ले करता है, वो बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे रोल प्ले करता है। हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस, और उसके जो भी ये जो वो काम करता है वो 7 एजेस है, मतलब कि 7 लेवल हैं जो उसको करने होते हैं। एज के 7 लेवल्स आते हैं। तो एट द फर्स्ट सबसे पहला स्टेज, दैट्स वाई दे हैव मेंशन द 7 नंबर ओवर देयर, बिकॉज नाउ दे द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द रोल विच वी हैव टू प्ले, एंड देयर आर 7 रोल्स डिपेंड्स ऑन द एज। द फर्स्ट वन, एट फर्स्ट द इन्फेंट, यू नो इन्फेंट छोटा बच्चा एकदम जस्ट पैदा हुआ है अभी तक, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म, है नर्स ने अपने आर्म्स में लिया है तो थोड़ा सा क्राइंग वाली आवाज़ निकाल रहा है। पैदा है, छोटे बच्चे हैं बेचारे, रोते रहते हैं, हंसते हैं रोते हैं, लेकिन जस्ट अभी पैदा हुआ है तो रो रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे प्यूकिंग का मतलब लिखा है थ्रोइंग अप या वोमिटिंग, वो सब। तो छोटा बच्चा है, समझ लो रो रहा है बेचारा। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, और फिर उसके बाद आता है यहाँ पर स्कूल बॉय। वाइनिंग स्कूल बॉय मीन्स अब बड़े हो गए, अब स्कूल जाना है आपको, है ना, बाद में कॉलेज बॉय बन लेंगे। तो स्कूल बॉय, उसके बाद सेकेंड रोल आता है हमको स्कूल बॉय का, कि अब स्कूल जाना है। अब उसमें कैसे होते हैं, तो विद ही सैचल्स मीन्स क्या है, यहाँ पर साइड में दिया है, इट मीन्स स्कूल बैग। तो अपना स्कूल बैग लेता है और वो स्कूल की तरफ चलता है। द शाइनिंग मॉर्निंग फेस, अभी मॉर्निंग तो बहुत अच्छी है, मॉर्निंग इज़ वेरी गुड, लेकिन क्रीपिंग लाइक स्नेल, लेकिन वो जो चल रहा है, मॉर्निंग तो बहुत फ्रेश है उसके चेहरे की तरह ही, लेकिन अब वो आगे क्रीपिंग लाइक स्नेल, लेकिन वो चल कैसे रहा है, स्नेल की तरह, वेरी स्लो, अनविलिंग टू स्कूल। ओके, बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं जो दे डजंट वांट टू गो टू स्कूल, स्कूल क्यों जाना पड़ता है, चलो एक्साइटेड भी रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स स्कूल नहीं, छुट्टी बोलते तो बड़ा मज़ा आता है उनको है ना, बहुत सारी छुट्टियाँ मिल गई है अभी। तो अनविलिंगली टू स्कूल, तो वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, स्कूल नहीं जाना चाहता है, ये एक सेकंड स्टेज आ जाता है। फिर थर्ड स्टेज द लवर। ओके, अब लगता है कॉलेज में आ गया है, अब मोहब्बत हो जाएगी इसे। शाइंग लाइक फ्यूरेंस विद ओफुल बैलेड, ओफुल बैलेड मतलब क्या लिखा है, सैड पोएम सॉन्ग। तो अब उसके अंदर से निकल के आ रहे हैं, लाइक अ फ्यूरेंस मतलब क्या निकल के आते हैं उसके अंदर से, वोफुल बैलेड मतलब दुख भरे गाने, क्योंकि जिससे वो मोहब्बत करता है उसे अब तक उसके दर्द, उसके प्यार का पता नहीं है, इसलिए वो दर्द भरे गाने गा रहा है। लिखा है ना, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, है ना। कभी जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, उनके जो कवि रहते हैं वो ज़्यादातर उनकी जुल्फ़ों के ऊपर कविताएं लिखते हैं, गाने लिखते हैं, कभी उनकी आँखों के ऊपर, कभी उनकी पलकों के ऊपर, तो यहाँ आईब्रो के ऊपर उन्हीं को देख रहा है, उन्हीं के ऊपर गाने लिख रहा है, गा रहा है। देन अ सोल्जर, ओके, थर्ड पार्ट भी हो गया, लवर का भी, तो इन्फेंट का हो गया। देन द सेकंड वन वॉज स्कूल बॉय, थर्ड वन वॉज लवर। अब नाउ ही इज़ एक्सप्लेनिंग मोर अबाउट द स्टेजेस, उनके रोल के बारे में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे लवर का भी थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब सोल्जर का, अब ये स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, प्यार व्यार ख़त्म, लगता है उसको प्यार मिला नहीं यहाँ पे, खतरनाक बन जाएगा अभी इधर तो वही लिखा देन अ सोल्जर, फिर सोल्जर बन जाता है। ऐसा नहीं कि उसने जाके कोई दिन ज्वाइंट कर लिया है किधर कि वो सोल्जर ही बन गया जाके, लेकिन यहाँ पे सोल्जर मतलब बता रहे हैं कि अब वो सोल्जर की तरह सोचता है, मतलब एकदम उसने डिसाइड कर लिया है। क्या देखो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, ओथ्स मतलब होता है ऐसा प्रतिज्ञा लेना, शपथ लेते हैं ना, तो वो ऐसा स्ट्रेंज ले लेते हैं कुछ ओथ्स, मैं ये नहीं करूँगा, वो करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये सब करूँगा, और क्या क्या करना है क्या नहीं करना है वो डिसाइड करता है, एकदम अपने कुछ उसूल बना लेता है। बियर लाइक अ पार्ट मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, पोइटिकल शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेपर्ड। ओके, लेपर्ड के लिए यूज़ किया है, मतलब देख लो थोड़ा लेपर्ड की तरह खूंखार हो गया है, प्यार नहीं मिला बेचारे को, लगता है घायल हो गया है, तो इसलिए लिखा है स्ट्रेंज ओथ्स ले लेता है, पता नहीं क्या क्या प्रतिज्ञाएँ कर लेता है, मैं ये नहीं करूँगा, इस चक्कर में नहीं फंसूंगा, है ना। बहुत जगह है, मोहब्बत बहुत ख़राब चीज़ है, इश्क कमीना है, पता नहीं क्या क्या लगते हैं बोलने, चलो उनकी अपनी अपनी फीलिंग, उनके अपने रोल हैं। सो बियर्ड लाइक द पार्ट, तो अभी उसकी जो उसकी दाढ़ी मूंछ जो रहेगी वो एक लेपर्ड की तरह रहेगी, ना, लेपर्ड को ही होती है,
तो यहाँ थोड़ा बता रहे हैं कि थोड़ा खूंखार, जेलस इन ऑनर। अब यहाँ पर बोले जेलस भी होता है। वो किस चीज़ से जेलस होता है? दूसरों का ऑनर देख के, है ना। तुम भी जब इस एज में जाओगे तो दूसरों के, क्योंकि कभी कभी योर पेरेंट्स विल started to tease you that look at your friends, they are doing very well in their life। तो ऐसा बोलना स्टार्ट करते कि वो देखो वहाँ पे जॉब कर रहा है, वो देखो इतना कमा रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो तो ऐसा है, तो यू विल फील जेलस। तो अब इसलिए यहाँ पर ये लिखा है कि तो बहुत जन के फिर जेलस फील करते हैं कि उसको इतना सम्मान मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो सडन एंड क्विक इनक्वायर, और यहाँ पर वो इस ऐसी एक लेवल पे आ जाता है कि अब यहाँ पर वो बहुत एकदम जोशीले रहते हैं, इस एज में गर्म खून रहता है बहुत। तो सडन एंड क्विक इन क्वारल मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। तो यहाँ पर वो झगड़ा करने के लिए भी रेडी रहता है। क्या हो गया तेरी हिम्मत कैसे मेरे को ऐसा बोलने की? भिड़, एकदम रेडी हो जाते हैं भिड़ने के लिए। तो एकदम क्यों, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं ऐसा वो? तो इसका रीज़न नीचे दिया, सीकिंग द बबल्स, बबल करके लिखा है, बबल रेपुटेशन। मीन्स यहाँ पर क्या है? रेपुटेशन के लिए। किसी ने कुछ बोल दिया, भड़क जाता है, तेरी हिम्मत कैसे मुझे बोलने की? हाँ, तो जानता नहीं है मैं कौन हूँ है। अबे कौन है तो? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो अब वो इतना बड़ा हो गया है और सोल्जर्स की तरह ट्रीट करता है। मतलब झुकूंगा नहीं, मैं तोड़ डालूंगा सामने और टूट जाऊंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं, ऐसा हो जाता है। तो अपनी रेपुटेशन के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी होता है। इस लास्ट में दिया है वो क्या क्या करने के लिए रेडी होता है। उस टाइम पे, उस एज में वो अपनी रेपुटेशन के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए रेडी होता है। इवन इन द कैनन्स माउथ। कैनन्स माउथ मतलब क्या लिखा है? फेसिंग ग्रेट डेंजर टू लाइफ। मतलब उसकी लाइफ में बहुत रिस्क होगा उस चीज़ में, उसमें भी चला जाएगा वो। मतलब कुछ जान का भी रिस्क आ गया, उसमें भी चला जाएगा। उसको अपनी रेपुटेशन से तब बहुत लेना देना होता है उस स्टेज पे। एंड देन द जस्टिस। अब इसके बाद जस्टिस यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि अब उसको थोड़ी असलियत समझ में आएगी। अबे क्या तो इतनी रेपुटेशन को यार, आगे बढ़ा, आगे सब लोग आके तेरे आगे झुके थे, तो ऐसा कुछ नहीं। फिर जस्टिस होता है। ये एकदम मस्त यहाँ से स्टेज स्टार्ट हो गई है। हम थोड़ा काउंट कर लें कितने स्टेज हो गया। आई थिंक 4 स्टेजेस हो गए। 4th वन ही थोड़ा डेंजर था ये। हाँ 4th वन था, अभी ये 5th स्टेज है ये। अब ये जस्टिस होता है। अब लगता है उसकी शादी हो गई है, क्योंकि अब जैसा बताएंगे ना, अभी उसको थोड़ा औकात पता चलेगी। वाइफ आगे बताएगी उसको, जिम्मेदारियाँ उसको बताएंगी, उसका बॉस उसको बताएगा उसकी औकात। देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली, है ना। देखो वही मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने तो देखा है, आई हैव सीन दैट आफ्टर मैरिज बेली आना शुरू, तो वही पेट निकल आया है। विद गुड कैप ऑन लाइन, यहाँ पे लिखा है विद एक्सेस फैट फ्रॉम केयरलेस ईटिंग हैबिट, है ना। सारा गुस्सा खाने के ऊपर उतार कुछ भी खा रहे, कभी भी खा रहे, मूड हो रहा था और खा रहे। तो मतलब एकदम केयरलेस होके खाओगे आप, केयरलेस की तरह लाइफ जियोगे तो पेट तो फूलना ही है फिर। विद आई सेवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। अब थोड़ा लुक्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो आई सेवर, और तो आंखों में एक अलग ही एक्सप्रेशन रहता है। एंड बियर्ड और फॉर्मल कट, और एक अच्छा सा फॉर्मल कट देते हैं। जैसे आप देखोगे तो धोनी भी पहले बाल बहुत लंबे रखता था, फिर उसके बाद उसने शॉर्ट कर लिए, बहुत टाइम तक उसने लंबे रखे बाल, फिर उसके बाद शॉर्ट कर लिए, एक मैच्योर्ड पन आ जाता है। फिर एक तो एक फॉर्मल कट रखते हैं, हल्की सी मूछ रख ली, हल्की सी कुछ शेविंग, ऐसा लापरवाही में नहीं। लाइफ चल रही है, उसके अलावा केयरलेस हो गई, ईटिंग हैबिट केयरलेस हो जाती है। क्या करें, पहले वो माँ पे डिपेंड होते तो चिल्ला लेते हैं ना, तो अपने हिसाब से खाते पीते हैं, लेकिन वाइफ आती है तो फिर थोड़ा उसकी थोड़ी औकात दिखाती है उसको, तो फिर उसका डाइट जो है वो काफ़ी हिल जाता है। जो मिल रहा है ना गपचुप खाओ, तुम्हारी माँ का घर नहीं है ये। बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, तो थोड़ा फॉर्मल कट रखना मतलब थोड़ा एक इंप्रेशन बनाने की कोशिश करता है कि आई एम वेरी सिंसियर मैन, सीरियस मैन, तो इसलिए अलग कट देता है, अपनी बियर्ड को एकदम शेप में रखने की कोशिश करता है। फुल ऑफ वाइस सॉस, बड़ा सोच समझ के बोलता है। सॉस का मतलब यहाँ पर है सेंक, तो बहुत सोच समझ के बोलेगा, मतलब ही वांट टू शो दैट आई एम वेरी स्मार्ट। क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे तो भाई कुछ गलत इंटरप्रेट कर लेगा कोई। तो फुल ऑफ वाइस सॉस, तो वो बहुत सोच समझ के बोलेगा। एंड द मॉडर्न इंस्टेंसेस, जैसे आजकल मॉडर्न इंस्टेंसेस का मतलब होता है एग्जाम्पल। आप नए कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो ना, कि मैच्योर लेवल होता है, बहुत कम सोच समझ के बोलना है ना। समझदार इंसान मतलब बहुत सोच समझ के बोलेगा और बहुत कम बोलेगा। बेवकूफ़ भी वैसे ही होता है लेकिन आपको उनके बोलने की बातों से पता चल जाता है। एंड सो ही प्ले हिज पार्ट, तो ये वाला पार्ट भी अपना प्ले करता है। तो 5th पार्ट मज़ेदार है एकदम, हर किसी को अपनी औकात पता चल जाती है। जस्टिस ओके, तो औकात कौन दिखाता है? जहाँ पर वो काम करेगा, उसका बॉस है वो, या खुद का होगा तो कस्टमर और 3rd हो गई वाइफ। ये सब औकात दिखाते हैं इनको, बरोबर लाइन पे आते थे। सही बात है,
ईगो होना नहीं चाहिए, शांत एकदम, जस्ट डू योर वर्क। तो अब आ जाते हैं सिक्स्थ एज में। द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून। अब ये सिक्स्थ एज मतलब ये अब समझ लो 60 क्रॉस कर गए, हो गया जितनी होशियारी मारनी थी फिफ्थ स्टेज में। तो 50 या 60 के बाद जो एज आ गई, बूढ़े हो गए हैं थोड़े, अभी 60 की पकड़ो। तो इसमें बोलते हैं लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून। अब वो ज़्यादा जीन्स पैंट ऐसा वैसे नहीं, एकदम सिंपल सा लीन प्रेस किया हुआ, और स्लीपर्ड पैंटालून, पैंटालून मतलब होती पैंट्स होती है, एकदम फॉर्मल पैंट्स होती हैं, वैसा पहनना है ना। आप देखोगे थोड़े से एजड रहेंगे, सिंपल पर्सन रहेगा कोई, तो वो एकदम सिंपल क्लोथ्स शर्ट पैंट पहनेंगे, ऐसा सिंपल सा। तो वो पैंट होती है, एक जीन्स वाली नहीं। उससे पहले वो जीन्स वीन्स की शॉर्ट वेट बहुत पहन के घूमते हैं, लेकिन बाद में आ जाते हैं क्या ना, ठंड लग जाएगी घुटने में किधर, तो पूरी नीचे तक पैंट पहनते हैं। तो वो ज़रूरी भी है, ओके, इसलिए नहीं कि उनकी चॉइस है, वो करना पड़ता है वैसा ही। हवा लग जाएगी तो हिल जाते हैं फिर, नहीं तो। विथ स्पेक्टिकल ऑन नोज, और चश्मा भी पहनते हैं आजकल, कम कम एज में भी लग जा रहे हैं। तो चश्मा रहेगा, पैंट पूरा नीचे तक रहेगी, एंड पाउच ऑन साइड। और कुछ नेसेसरी चीज़ें होती है जो पाउच में डालते हैं, साइड में रखते हैं ना, ज़रूरत कोई चीज़ की पड़ जाएगी, है ना। जब तक यंग है तब तक यार अपने को क्या चाहिए, कुछ नहीं, जब चाहिए दौड़ के ले आएंगे। अब नहीं, अब जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं साथ में ही रखने का, है ना। अस्थमा का प्रॉब्लम है तो पंप साथ में रखो, यहाँ वहाँ छूट गया तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो जो भी नेसेसरी चीज़ें आप पाउच में रख सकते हो, ओके। ज़्यादा एज हो गई है, तम्बाकू खाने की आदत है, तो वो भी पाउच में रख लो, ओके। जो भी गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स, तो वो पाउच एक साथ में रखते हैं, उसमें अपनी नेसेसरी जो थिंग्स है दे कीप दोज थिंग्स। हिज यूथफुल होज मतलब लिखा है क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग, क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स। क्लोथ्स के बारे में बात की है, हाँ। तो मतलब अच्छे से किया रहता है। और यहाँ पे शायद वही बता रही, जब वो बैठते हैं तो कैसे हैं, एकदम एक यंग पर्सन बैठता है एनर्जेटिक, तो एकदम सीना तान के बैठेगा, लेग्स एकदम अच्छे से करके। लेकिन जब थोड़ा सा एज हो जाती है तो ऐसा थोड़े से बेंड होके बैठते हैं। वेल शेव्ड, अच्छे से शेविंग, ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ कुछ लोग करते हैं, वेल शेव्ड रहते हो, ओके। एकदम एजड नहीं हो गए अभी तक, एक वो रिटायर वाली एज है बहुत ज़्यादा एज होती है वो 80 क्रॉस, उसके बाद फिर आप नो शेविंग, कुछ याद ही नहीं रहता। लेकिन अभी इस एज में अभी भी थोड़ी एक रेपुटेशन लेवल हल्का सा रहता है कि नहीं यार थोड़ा वेल शेव रहना है, अच्छे कपड़े डिसेंट पहनने, बहुत चकाचक तो नहीं पहनने, लेकिन जो नेसेसरी है हमारे लिए वो सब और ज़रूरत की चीज़ें रखनी है, ओके। तो हिज यूथफुल होस मतलब क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स के लिए प्रॉपर कवर रहे वैसी चीज़ें, और अच्छे से शेव किया हुआ है कि एक मैच्योर पन आ जाता है मैक्सिमम लोगों में। अ वर्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक। तो श्रंक शैंक का मतलब यहाँ पर क्या लिखा है कि उसे धीरे धीरे पता चल जाता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, और अब उसकी जो भी ये चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कम हो रही है ना। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, जो एक कड़कपन था आवाज़ में, है ना। एक यंग एज रहती है तो एक कड़कपन होता है आवाज़ में, डांट दिया, कभी कभी वाइफ को भी डांट देते हैं, कभी बच्चों को डांट देते हैं, पड़ोसी से भिड़ जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं कभी कभी। ऐसे तो चुपचाप ही रहते हैं आफ्टर मैरिज, लेकिन फिर भी कभी कभी कर देते हैं। वो धीरे धीरे कम होने लगता है, वो जो उसकी दुनिया थी वो धीरे धीरे श्रंक होने लगती है ना। शैंक मतलब लिखा है लेग, धीरे धीरे घुटने पे आते हैं, है ना। आप बैठने का पोस्चर भी देख सकते हो उनका, लेकिन यहाँ बताना चाहते हैं दे वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन कि वो उसका जो भी ये पूरा जो उसका मैनली वॉइस थी, जो उसका एक जवानी में एक जोश हुआ करता था, वो सब अब धीरे धीरे कम होने लगता है, श्रंक होने लगता है। अब आगे आ जाते हैं, तो ये हो गया सिक्स्थ में थोड़ा डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी सी अकड़ है, वेल शेप, पाउच भी चाहिए, वो सब। नेक्स्ट तो अब आ जाती है लास्ट स्टेज, सेवेंथ, टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश। इस एज में अगेन हम लोग क्या बन जाते हैं, चाइल्डिश बिहेवियर आ जाता है हमारे अंदर। लिखा है यहाँ पे ट्रेबल का मतलब लिखा है 3 टाइम्स वीकर देन, मतलब जैसे पहले थे उससे अब हम 3 गुना हम वीक हो जाते हैं, ओके। तो ये दे आर टॉकिंग अबाउट द एज आफ्टर 70 और 80। अब सबका स्ट्रक्चर डिपेंड है, लोग कैसा खाते पीते हैं, कोई फिट भी रहते हैं, लेकिन आफ्टर 80 मोस्ट ऑफ दी लोग जो रहते हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, ओके। उससे पहले काफ़ी मैनेज भी कर सकते हो, अच्छे से खाओगे पियोगे, योगा एक्सरसाइज डाइट एवरीथिंग, स्ट्रेस को मैनेज करना, वो सब चीज़ें। लेकिन आफ्टर 80 तो लगभग बहुत जन डाउन हो जाते हैं मैक्सिमम, तो काफ़ी वीक हो जाते हैं। 3 टाइम्स टू द अर्लियर पाइप्स एंड विस्टल इन हिज साउंड,
और ये तो बता रहे जैसे एक पाइप खाली रहती है, हवा ही उसमें से सीटी निकलती है, वैसे ही इनके बेचारों के मुंह से भी अप्पा 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 चप्पा डप्पा ही निकलता है। द लास्ट सेंस ऑफ ऑल, अब ये लास्ट सेंस बोल रहा हूँ मैं, सीन है सॉरी, ये द लास्ट सीन ऑफ ऑल, अब ये लास्ट सीन है, इसके बाद लाइफ एंड, दैट एंड दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। तो बोलता है ये जो एक अजीब व गरीब हम ज़िंदगी जी रहे होते हैं कि क्या है, कहाँ से आए, कहाँ, बहुत जन को नहीं पता चल पाता है और अपनी वो लाइफ भी ख़त्म हो जाती है और वो यही नहीं जान पाते हैं कि हम क्यों आए थे, हमारा क्या पर्पस था, हम कहाँ जाते हैं, क्योंकि वो सब इन चीज़ों को जानने की कोशिश ही नहीं करते। वो बस जो उनकी आंखों से दिखाई दे रहा है, जो उनके सेंसेस से साफ साफ दिख रहा है, उसी को एंजॉय करते हैं और उसी में रह जाते हैं। लेकिन फिर भी देखो लास्ट में भी गॉड उनको क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा है कि इन सेकेंड चाइल्डिश एंड मियर ओब्लियन मतलब स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर। हाँ, यहाँ पर बता रहे हैं कि इस एज में उनकी वो हिस्ट्री अब सब खत्म होने वाली है, सब खत्म, अब भूल भी जाते, याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। इन सेकेंड चाइल्डिश, तो ये सेकेंड वापस से चाइल्डिशनेस था वो वापस आना स्टार्ट हो जाता है, बच्चों की तरह थोड़ी देर में नाराज़, फिर भूल जाना, सब ऐसा काफ़ी हद तक मैच होता है। इन मियर ओब्लियन का मतलब लिखा अनअवेयर, अनकॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग, आसपास क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। क्यों नहीं पता चलता है उनको, क्योंकि ब्रेन भी ढंग से तब काम नहीं करता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सैंस टीथ, मतलब सैंस का मतलब लिखा विदाउट, क्योंकि दांत लगभग निकल जाते हैं, टूट गए होते हैं, इतनी एज हो जाती है, ख़राब हो जाते हैं, तो दांत भी नहीं है, आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, टेस्ट भी समझ में नहीं आता है, एंड सेंस एवरीथिंग, हर चीज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, साफ साफ। द क्लियर मैसेज इज गिवन बाय द पोइट एज वेल एज द गॉड बाय दिस, when there is no teeth, no eyes, no taste, everything is going downward, decreasing, it means it's time to live. Don't go deep into the life now, और तो those worldly things, जो दुनिया की चीज़, उनमें ज़्यादा मत जाओ। इसीलिए तो देखो, क्योंकि इन्हीं सब सेंसेस से ही तो हम लोग पूरा इस जो दुनिया है, हर एक चीज़ को हम इंजॉय करते हैं। लेकिन सब चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाती है। इनमें साफ साफ हिंट है कि हो गया सब बस, अब हिस्ट्री ख़त्म, भगवान का नाम ले लो तो शायद थोड़ा पता चल जाए कहाँ जाने वाले हैं, वरना कुछ नहीं पता चलेगा और गलत जगह चले जाओगे फिर। तो लास्ट में यही था, लास्ट चाइल्डिश, सब कम हो जाता है। लेकिन आजकल लोग नए दांत लगा ले रहे हैं, चश्मे लगा ले रहे हैं, सुनने के लिए नई मशीन लगा ले रहे हैं और नई नई चीज़ें खा पी रहे हैं। चलो, so this was the poem, and soon I will send the question also, and send me the answers of the earlier question also. Okay, till then, bye bye, see you soon, bye bye.